Hello students, welcome to class for online classes. Dear students, in previous video we started our question answers. Okay, in question answers I think we completed 7 question answers and remaining question answers of the little poetry we are going to discuss in today's video. Okay, now 8 number question. Look at the picture on the on textbook page number 30. In the given yellow box, there are 8 things. 6 of them you can see in the picture. The other 2 you cannot see. Write down at least 4 things you can see. What to do here? Here is one picture. See on your page number 30. पेज नंबर 30 का जो पिक्चर दिया गया है, तो उससे क्या करना है आपको? 6 things are given in the picture. Okay, and in picture you can see that 6 things, and from these 6 things you can write at least 4 things in your book and then also in your notebook. यहाँ पर आपको सिर्फ 4 चीजों के नाम लिखने. देखो, see in your picture, have you seen the ducks? क्या आप उस पिक्चर में डक्स देख सकते हो? Here you can see the ducks. Next, mat. Yes, there is mat. Then third number, dog is there. I think we haven't seen any dog in this picture. Dog ही नहीं दिख रहा है, तो dog नहीं होगा. Then next, girl is sitting there. We can see the girl is there. The boy is also there. You can also write boy. Flowers also there. Here you can see the flowers. Then write at least 4 things you can see. For example, you see ducks, man, girl, boy, flower. From these 5-6 words you can write at least 4 words. Okay, now question number 9. Now look at the same picture again and describe the picture. On the picture, on the page number 30, you can see the picture once again and just write few things on the on that picture or describe that picture. Okay, here you can see there are many things and you can write more sentences. Here the ducks are swimming in the pond. The girl is pointing towards the small bird. The boy is looking at the small bird. Okay, but you can write your own sentences also. For example, one day we went to the garden or park. आप मन से लिख सकते हो ना, एक दिन हम कहाँ गए थे? पार्क में गए थे. Okay, with my family, my brother. Okay, and what I saw there? I saw ducks, I saw pond, flowers, animals, and we also taken lunch there. इस तरह से आप मन से भी कुछ sentences लिखकर उसमें सोचकर उसमें लिख सकते हो. Okay, now one time here on page number 31, Ajit loved flowers. Okay, here Ajit loved flowers and he always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can't have a garden in dish?" Ha ha ha. Ajit laughed. A garden in a dish? Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in a dish, plant very tiny plants in it and place the dish on the window sill. Okay, here Ajit नाम का एक लड़का है, उसे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं और उसे क्या अच्छा लगता है कि उसे गार्डन अच्छा लगता है. उसे लगता है कि मुझे मेरा खुद का एक गार्डन चाहिए. तो वो उसका जो फ्रेंड है मोहन, वो क्या कहता है, हाँ तो अच्छा है, तुम तुम्हारा गार्डन बना सकते हो, लेकिन किसमें? डिश में. एक जो डिश होती है हमारे घर पर, प्लेट, उस प्लेट में तुम्हारा गार्डन बना सकते हो. और वो सुनकर क्या होने लगा? अजीत हंसने लगा. गार्डन कोई डिश में कैसे लगाता है गार्डन? तो वो सोच रहा है गार्डन डिश में नहीं लगा सकते. लेकिन मोहन क्या बताता है, हाँ हम गार्डन तैयार कर सकते हैं डिश में. तो उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए? कुछ पत्थर चाहिए, मिट्टी चाहिए, उसके बाद उसके लिए खत जो होता है वो चाहिए, और वो डालकर हम उसमें छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती, वो छोटे ही होते हैं, छोटे ही रहते हैं, तो उस तरह के प्लांट्स हम
उस डिश में लगा सकते हैं और वो वहाँ पर छोटे प्लांट्स ग्रो भी कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो। आप भी उस प्लेट में, खराब प्लेट हो, कुछ क्या खराब जो आपके घर पर कुछ पड़ा हुआ सामान है, प्लेट होती है, कुछ डिब्बे होते हैं, तो उसको कट कर कर उस उन चीज़ों का यूज़ कर कर आप भी अपने घर पर वो छोटा सा डिश गार्डन बना सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बारिश का मौसम, नाउ रेनी सीजन, यू कैन प्लांट वेरियस थिंग्स, वेरियस ट्रीज, वेरियस प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। जैसे कि रेनी सीजन में आप कौन सी भी चीज़ लगाओ, मतलब जो प्लांट लगाओगे वो अच्छे से ग्रो होता है। तो आप वो कर सकते हो और आप करने के बाद मुझे वो दिखाना है, दिखा सकते हो। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 31, सेकंड नंबर क्वेश्चन, the glass breaks easily when it is dropped. Do you know? Do you think a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic book, your plastic water bag or water bottle can break easily? Circle the thing that can. Okay, here what to do? We know that if the thing is made from glass and it dropped, then what happened? It broke. मतलब कुछ भी कांच की चीज होती है, हमारे हाथ से फिसल जाती है तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। आपने देखा होगा, ग्लास होता है, ग्लास कांच का, तो नीचे गिरता है पानी पीने का, तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिया गया है, और कौन कौन सी चीजें कि वो नीचे गिरने के बाद टूटती है। यहाँ पर आपको 6 पिक्चर दे, उसमें से कौन कौन सी चीजें टूट सकती है। हियर मड फ्लावर पॉट, मिट्टी का जो मटका है, फ्लावर पॉट है, वो टूटेगा क्या, नीचे गिरने के बाद, हाँ वो तो टूटेगा क्योंकि वो मिट्टी से बना है। उसके बाद ग्लास स्पून, ग्लास स्पून मतलब एक चम्मच है, ग्लास का है, कांच का है, तो वो भी टूट सकता है। उसके बाद वुडन टेबल, वुडन टेबल अगर बड़ा है तो वो नहीं टूट सकता। प्लास्टिक कप नहीं टूटेगा। उसके बाद बुक्स नीचे गिरे तो नहीं टूटेंगे। प्लास्टिक वाटर का नीचे गिरा तो नहीं टूटेगा। कप जो होता है हमारा चाय पीने का, तो अगर चीनी सॉइल का हो, चीनी मिट्टी का होता है और दूसरे मिट्टी का होता है, तो वो 100% टूटेगा। ओके, दीज आर द थिंग्स व्हाट टू डू हियर, द थिंग्स दैट कैन ब्रेक इजीली, यू कैन सर्कल द थिंग दैट कैन। मतलब इस चीजों में आपको क्या करना है, सिर्फ सर्कल करना है। जैसे फ्लावर पॉट को एक सर्कल करना है, उसके बाद कप को सर्कल करना है, स्पून जो है स्पून को भी सर्कल कर सकते हैं क्योंकि वो स्पून कौन सा है, कांच का है, ग्लास का है। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर third here on 32, and here the question is, which of the following actions would make others happy and unhappy? Here some of the actions are given and what to do here, क्या करना है आपको, यहाँ पर जो चीजें करने से लोग खुश होते हैं वो चीजें एक साइड में लिखनी है, और जो चीजें करने से लोग अनहैप्पी होते हैं, ना खुश होते हैं, सैड होते हैं, उन चीजों को दूसरे कॉलम में लिखना है। ओके, एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी, जो एक्शंस पीपल को हैप्पी करते हुए एक्शंस कौन से, वो यहाँ पर एक बॉक्स है उसमें दिया गया है। तो फर्स्ट है रिस्पेक्टिव एल्डर्स, और रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, फर्स्ट रिस्पेक्टिव में या रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज द थिंग और द एक्शन दैट पीपल मेक्स हैप्पी। लोगों को अगर रिस्पेक्ट करोगे, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे तो वो चीज अच्छी है, उससे लोग हैप्पी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नॉट सेइंग थैंक यू, अगर आप किसी को थैंक यू नहीं कहोगे तो वो चीज अच्छी है क्या, नहीं, वो दैट थिंग इज बैड थिंग। ओके, दिस इज इन पीपल मेक अनहैप्पी, नॉट सेइंग थैंक यू। नेक्स्ट बीइंग पोलाइट, बीइंग पोलाइट इज गुड थिंग, अच्छा रहना, पोलाइट रहना, लोगों का सुनना, ये चीजें अच्छी है, बड़े लोगों के सुनना, ये बीइंग पोलाइट होना ये अच्छी चीज है, वो लोगों को खुश कर सकती है। Next, not sharing. If you have something, for example, you have tiffin. Everybody you bring tiffin to in your school. Then if you not sharing your food with your friends, this thing is not good. Okay, वो अच्छे नहीं, लोगों को खुश करेगी क्या, नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अरे वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे कुछ देता ही नहीं, वो शेयर करता ही नहीं हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो that
that thing or that action makes people unhappy. Playing with friends, yes, this thing make people happy. खेलना लोगों को खुशी करेगा. वॉचिंग टीवी ऑल डे, पूरा दिन टीवी देखना, उससे आपके जो मम्मी पापा है वो क्या हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे. तो ये एक्शन कैसी है, अनहैप्पी. केयरिंग फॉर पेट्स, ये अच्छी चीज है, लोग खुश भी होंगे और वो जो पेट है वो भी खुश होगा. फॉर एग्जाम्पल आप यू हैव पेट डॉग, पेट कैट, तो उसके आप केयर करते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो वो अच्छी चीज है. नेक्स्ट, बीइंग ग्रीडी. बीइंग ग्रीडी मतलब लालची होना. लालची होना अच्छी चीज है क्या, नहीं, वो बुरी चीज है, वो अच्छी चीज नहीं, वो एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी. नेक्स्ट, बीइंग ऑनेस्ट. ऑनेस्ट रहना, प्रामाणिक रहना, वो चीज अच्छी. एंड लास्ट है गेटिंग एंग्री इजीली. इजीली एंग्री हो जाना, किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, वो चीज अनहैप्पी होगी. ओके, these things you can write in book also and in your notebook also. Now here on page number 33, there was a thick jungle with a beautiful green trees and birds. Koel was singing happily. Suddenly she heard someone crying. It was her friend, the peacock, and she flew to him and asked, "Why are you crying?" "I hate myself. I have such ugly feet." Okay, here some things make you feel happy, some things make you feel sad. Write a poem on the picture. Okay, here in the thick jungle, beautiful trees are there, beautiful birds are there, like peacock, koel. No, these are the birds are living in the thick jungle. But that koel heard someone was crying. She heard the voice of someone. That bird was crying. And what? Which was that bird? The bird was peacock. कौन सा bird रो रहा था? तो वो peacock था. और वो क्यों रो रहा था? तो वो कोयल उससे पूछती, "Why are you crying?" Then that peacock said, "I hate myself. I have such ugly feet." तो बोलता है, मैं बहुत अपने आप से गुस्सा करता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे जो फीट है वो कैसे है, अगली, खराब है, दिखने में अच्छे नहीं. तो वो देखो, वो जो पिकॉक है वो किस बारे में सोच रहा है, उसके पैर के बारे में. पैर तो खराब है उसके, लेकिन बाकी जो बॉडी है उसके जो फीदर्स है सबसे अच्छे. इस वजह से वो नेशनल बर्ड भी है, हमारा सबसे सुंदर बर्ड वो है. लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, अपने पैरों को दोष दे रहा है. वो कह रहा है कि मेरी जो फीट है वो अगली. हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें आपको खुश करती है और कुछ चीजें आपको अनहैप्पी करती है. और दिस इज द थिंग इन सोसाइटी, इन और सोशल लाइफ, ये चीजें होती ही रहती. कुछ चीजें आपको खुश करेगी, कुछ चीजें आपको दुख देगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में फर्स्ट नंबर आए तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन हर बार ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, कभी कभी 1 मार्क कम मिल सकता है, 2 मार्क कम मिल सकते हैं, आपका फर्स्ट से सेकंड नंबर आ सकता है. तो वो चीज़ है क्या है, एक चीज़ आपको खुश करती है और एक चीज़ आपको ना खुश करती है. तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको खुश करती है उसके बारे में भी सोचना है और ना खुश करती है उसके बारे में भी सोचना है. अगर आपका फर्स्ट नंबर नहीं आता है तो अगली बार क्या करना है, और ज़्यादा प्रयास करना है और फर्स्ट नंबर लाने की कोशिश करनी है. और देखो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी हाइट कम होती है, वो सोचते हैं मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे हाइट कम है. कुछ बच्चे सोचते हैं मैं काला हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ. तो ऐसा नहीं, जैसा भी वो आदमी, जैसा भी वो बच्चा है, जैसी भी वो गर्ल है, कैसी भी हो, उसका नाक कैसा हो, उसका कान वगैरह, बॉडी, बाल, वो चीज़ें मायने नहीं रखती. हियर दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट. ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. व्हाट टू डू, द थिंग्स दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट मेक्स हैप्पी. हमें जो चीज़ें खुश करती है, जिसमें हमें अच्छा लगता है, जैसे है हम वैसे ही अच्छे रहना चाहिए. ओके, दिस इज द स्टोरी अबाउट दिस थिंग, अबाउट द पीकॉक. सिर्फ एक चीज़ आपके पास खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी चीज़, पूरी बॉडी और सब कुछ आपका खराब है. तो एक चीज़ खराब होने से कुछ नहीं होता, तो बाकी चीज़ें तो अच्छी है ना आपके पास, तो उनके बारे में यहाँ पर सोचना है. ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन. हियर लेट्स मेक अ वर्ड ट्री. आपको एक वर्ड ट्री बनाना है. सिंपल है, आप घर पर भी बना सकते हो. दिस इज हाउ यू विल डू इट. टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ पेपर और न्यूज पेपर, रोल इट लाइक दिस. आपको एक ग्रीन कलर का पेपर लेना है, उसको रोल करना है. ओके, रोल कैसे करना है आपको पता है. तो रोल करने के बाद क्या करना है, आपको उस पेपर को जहाँ से एक हाथ में पकड़ना है और
उसके फर्स्ट साइड से उसको क्या करना है, कट करना है साइड में। आप देख सकते हो पिक्चर पर पेज नंबर 34 पर। उस कट करने के बाद उसको फिर से क्या करना है, पीछे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद उसकी जो ब्रांचेस निकल रही है उसको निकाल लेना है और उसको थोड़ा सा फैला लेना है, और आपकी जो ट्री वो इजीली क्या हो सकती है, बन सकती है। ओके, सो टुडे वी फिनिश द little fir tree, all the things whatever in the story or the lesson, the question answer, new word, and all the things we discussed. So today we stop here, and in next video we will start our next topic, next lesson. Or when we finish I think first poem and lesson over, we will start workbook. Okay, so today we stop here. Thank you very much.